ये पुराने टाइम में विकी होती थी और उस पे घूमते रहते थे। तो हर दुकानदार पे कोई ना कोई ऐसा लड़का होता है, मतलब हर दुकान पे, जो कि सारा कलेक्शन करता है या सामान देता है। तो दैट पर्सन हु इज रोमिंग अराउंड और कलेक्टिंग और गिविंग समथिंग इज लाइक एन एजेंट, और वट एवर ही इज डूइंग इन द कैपेसिटी ऑफ प्रिंसिपल। जैसे जो मालिक जो करता है उसी कैपेसिटी में वो उस काम को कर रहा है। So why this concept is important and why we need to study it? Because in common course it is believed that the agent is representing the principal, and whatever an agent is doing will bind the principal in all courts, in law basically. So what we do is, like A is equal to P, we make it an equation in the eyes of law. So A is equal to P in the eyes of law. अब लॉ की नजर में जो भी काम एजेंट ने किया है ना, वो प्रिंसिपल ने किया है, और कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। So first thing what we do is, as a lawyer or as a judge, अगर हमारे पास कोई ऐसा केस आता है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें एजेंसी को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजेंसी, ये हमारा पहला काम होगा कि क्या वास्तव में वहां पे एजेंसी क्रिएट हुई है या नहीं हुई है। So our first task will be that is to find out whether the agency has been created or not, because in common language or in common dealings you see that word agent is frequently used, although it is not an agency in law. You are getting my point here, that every relationship of master and servant is not principal and agent. We need to establish first thing that whether it is an agency or it is something else. Let me quote you a case where it was established that it's very important case, like it is Shakti Sugars Limited. It's Shakti Sugars Limited वर्सेस केस लॉ में हमेशा याद रखिए स्मॉल वी डॉट रहता है, ये पैटर्न है, और इसको आप वर्सेस नहीं लिख सकते, बड़ा वी नहीं लिख सकते। इट इज ऑलवेज इन स्मॉल केस। So Shakti Sugars Limited versus Union of India, and citation is AIR 1981, Delhi High Court. सर, Yes please. काफी केसेस में ना ये AIR मेंशन नहीं होता सिर्फ, और जो ईयर मतलब जहाँ पे जैसे 1981 आपने लिखा है वहाँ पे सिर्फ 3 डिजिट्स होंगे, जैसे 312 या जो भी XYZ, बट 3 ही होते हैं। तो उसका रीजन क्या होता है? कोई एग्जांपल दो मुझे आप, फिर मैं बताऊंगा आपको। सर अभी ऐसा सच तो मुझे याद नहीं है, बट मैंने काफी केसेस में देखा है वहाँ पे AIR। कोई बात नहीं, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, फिर कोई दिक्कत नहीं।
Now, how to pronounce the case? It is in the case of, please pay attention here, in the case of Shakti Sugars Limited versus Union of India, reported in All India Reporter. Reported in All India Reporter, not AIR. The correct way to pronounce is reported in All India Reporter in the year 1981, Delhi High Court, at page 212, not 212. It's 212. Are you getting me here? So this is the correct way to pronounce the case whenever you are appearing before any court or you are appearing in interview. So in this case, what was the fact that State Trading Corporation, STC, it's like export sugar outside India, but it does not mean that it's an agent of Union of India, because it's it is exercising a commercial function, and its position is more similar to an individual who has been authorized to export some goods, because it has been given a license by the government to export sugar from the abroad, from outside India. Like you must be knowing that Pakistan has been till this Pulwama attack. उससे पहले Pakistan was MFN of India, most favored nation. रीजन बीइंग कि हमारी जो सबसे ज्यादा चीनी जो है ना वो पाकिस्तान से आती है. यू विल बी सरप्राइज्ड कि इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी. पहले नंबर पे हो सकता है, लेकिन दिन में 6 कप चाय तो हम ही पी जाते हैं. यानी कि इतना कंजम्पशन है शुगर का इंडिया के अंदर, चाहे स्वीट्स हो, चाहे वो हलवा बनाना हो, घर में कोई मेहमान आ गया, मतलब जैसे पता नहीं, मतलब भगवान को भोग लगाना है तो भी मिट्टी का लगाना है. और हमें मतलब पाकिस्तान से शुगर लेना पड़ता है, और उसका रीजन यही है कि कंजम्पशन बहुत ज्यादा है इंडिया के अंदर. और इसलिए पुलवामा अटैक से पहले मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया हुआ था हमने पाकिस्तान को, वो वापस ले लिया है, अब नहीं है MFN पाकिस्तान. सो बहरहाल इस केस में आप जो मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि एक तो लाइसेंस है स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के पास शुगर एक्सपोर्ट करने का. अब लाइसेंस इज डिफरेंट फ्रॉम एजेंट, हमेशा याद रखिए इस चीज को. मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा नोट्स होंगे तो. ये लाइसेंस की बात कर रहा है इस केस में, और एक वर्ड और डाल देते हैं ताकि आपको क्लैरिटी रहे. दैट इज शुगर, और इसकी बात कर रहा था STC, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन. लाइक you will be able to correlate with the case with this short note. तो यहाँ पे एजेंसी एस्टेब्लिश नहीं हो रही है. So the next thing which we need to look at is that while we establish agency, what we need to see is whether the consent of both the parties, like agent and principal, whether it was there or not. Number one. Number two, yes, consent was there. Number two, whether they agree, like what will be the consequence of this relationship. A principal will be bound by the act of agent, whether the principal understands this, and whether an agent is of understanding, is of the mental state that he is acting on behalf of principal and he is nothing.
in the eyes of law, the principal is actually acting and he is representing the principal only. And this consent, it may be both ways, like through express words or through conduct. That's a different aspect. Two things we need to establish while we are establishing agency, that is the consent of both the parties and whether they agree to be bound by the acts of each other, and the consent once again may be in either way. Now in your competitive exam or in your local exams, generally the question comes like this, that who is an agent and how do you understand creation of agency. तो वो हमने अभी जैसे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजेंसी आपको मैंने बताया, तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजेंसी बहुत जरूरी है. दिस कंसेप्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजेंसी, सबसे पहले आप ये देखेंगे कोई भी आपके पास केस आएगा कि भी क्या रियल मायने में वहां पे एजेंसी है या नहीं है, या कुछ और है, वो कहीं लाइसेंस तो नहीं है. मतलब जनरली क्या होता है कि भी लाइसेंस होता है और एक वर्ड होता है आपका लीव. लीव इज समथिंग लाइक जैसे आप एयरटेल के बोर्ड वगैरह घरों पे कई बार देखते हैं, या घर की दीवार के ऊपर कोई एड आ रही है, एड लगा दी, तो दैट इज लीव, राइट. अब इसमें जो आपका एसेंशियल्स क्या रहेंगे, essentials of agency. अब सबसे पहला जो पॉइंट है, that is the principal should be competent to contract. P, he should be competent. This is the first point, and for that we refer to section 183. ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एक लॉयर जो होता है ना, वो अपने आप कुछ नहीं कहता. जब वो केस प्लीड करता है तो वो कहता है भी सुप्रीम कोर्ट ये कहता है जी, देखो हाई कोर्ट ये कहता है, आपका स्टैट्यूटरी प्रोविजंस सेक्शंस ये कहते हैं. वो लॉयर कुछ नहीं कहता. लॉयर कहता है कि भी देखो सभी कह रहे हैं, तो आप भी जज साहब, आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी ऐसा ही बोलो. What basically a judge is a lawyer is doing is he is convincing the judge to act in appropriate way. So agent, he may not be competent to contract. May not be है यहाँ पे वर्ड, मैं वो कर देता हूँ, थोड़ा सा एनसीसी समझ नहीं आएगा. may not be C. May not be competent. And here your relevant section is section 184. So it's simple, it's in the series like 183, 182 में आपका कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन है कि एजेंसी क्या होती है. 183 में प्रिंसिपल कंपिटेंट होना चाहिए. 184 में एजेंट मे नॉट भी कंपिटेंट है. और लास्टली
आपका नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड, नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड. So these are the essentials. Number one, the principal should be competent to contract. Section 183. Any person who is age of majority according to the law and who is of sound mind may employ an agent. अब इसके लिए आपको है ना इंडियन मेजोरिटी एक्ट देखना पड़ेगा. कॉम्पिटेंसी के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, मैं इसको इन शॉर्ट लिख रहा हूँ. इंडियन मेजोरिटी एक्ट, इसका सेक्शन 3. अब पहले 21 साल थी और राजीव गांधी ने इसको 18 कर दिया वोटिंग एज को. बड़ी आर्बिट्रेरी है, मतलब कोई ऐसा साइंटिफिक रीजन नहीं है कि 18 साल में ऐसा क्या जादू हो जाता है कि आदमी मेजर हो जाता है. क्योंकि प्यूबर्टी तो बहुत पहले आ जाती है बच्चों में, मतलब अभी जैसे 13-14 के पहले हमारे टाइम में मतलब 15-16 में थी, अब 12-13-14 में ही प्यूबर्टी आ जाती है. तो वो फिजियोलॉजी चेंजेस जो है वो तो अब बहुत पहले होने लग गए. और जो आपका 18 इज आर्बिट्रेरी टोटली, मतलब ये कभी मेरे को स्ट्राइक नहीं किया अमेरिकन साइंस को कभी ऐसा क्या होता है कि 18-21 में उस पर्सन को हम मेजर मान लेते हैं. सो इट्स ए आर्बिट्रेरी थिंग बट स्टिल इट इज इन द लॉ, तो हमें मानना पड़ेगा. तो एज ऑफ मेजोरिटी है, इंडियन मेजोरिटी एक्ट कहता है सेक्शन 3 कि जो आदमी 18 साल का है वो मेजर माना जाएगा. लेकिन जिसका गार्जियन कोर्ट ने अपॉइंट किया है, इन केस एनी गार्जियन इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, दैट पर्सन विल टर्न टू मेजर एट द एज ऑफ 21. 18 और 21 की बात है, 3 साल उसको एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे वहां पे अगर उसका कोर्ट ने गार्जियन अपॉइंट किया. दूसरी कंडीशन है साउंड माइंड होना चाहिए. अब साउंड माइंड का जो कंसेप्ट है, जो आदमी लुनेटिक होता है या पागल होता है वो अनसाउंड माइंड का होता है. वो अपने आप को पागल नहीं कहना या दुनिया के कहने से नहीं होता. ही शुड बी डिक्लेयर्ड ऑफ अनसाउंड माइंड बाय अ कोर्ट ऑफ कंपिटेंट जुरिडिक्शन. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. एक तो अनसाउंड माइंड वाली बात हुई और एक आपका इंसॉल्वेंसी जिसे दिवालियापन कहते हैं. तो खुद के कहने से कोई दिवालिया नहीं होता, लोगों के कहने से नहीं होता. इट इज फॉर द कोर्ट, कंपिटेंट कोर्ट. गुड़गांव में रहता है तो गुड़गांव का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बताएगा कि क्या ये आदमी पागल है या ये दिवालिया है. लोगों के कहने से नहीं होगा, ठीक है. और उसके लिए डिक्लेरेटरी सूट डालनी पड़ती है कि जी मैं मेरे इतने वो नहीं है, असेट नहीं है और मैं अपने लोन नहीं चुका पा रहा हूँ. तो फिर वो असेसमेंट के बाद उसको हम इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देते हैं. अब हरियाणा में जो जनरली सिविल कोर्ट के अंदर जो सीनियर डिवीजन होती है, जैसे जब आप जज लगते हो एलएलबी के बाद तो आप लगते हो सिविल जज जूनियर डिवीजन, और साथ में आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर्स देते हैं. 3 साल तक की सजा आप दे सकते हो, हरियाणा की बात कर रहा हूँ मैं. और फिर आप सीनियर डिवीजन में जाते हैं, सिविल जज सीनियर डिवीजन 7 साल के बाद. तो उस समय फिर आपको ये इंसॉल्वेंसी कोर्ट की पावर दे देते हैं हरियाणा के अंदर, एंड यू कैन डिसाइड whether a person is insolvent or not. तो सेक्शन 183 कह रहा है कि 18 साल का आदमी 18 साल 1 दिन और साउंड माइंड का वो प्रिंसिपल हो सकता है. he can employ an agent. Now this agent that is employed by the principal will represent the principal in relation with the dealings with the third party. So one important thing that is a low point here is that this principal who should be competent to contract, the third party with whom that agent is interacting should also be competent to contract. Now this is the technicality.
agent, you see, agent may not be competent. We are hardly bothered what agent is doing. But this principal, he should be competent, as well as the third party with whom this agent is dealing, principal and third party, they should be competent to contract as per Indian Contract Act. So what happens if the principal is of unsound mind? It means that he will not be bound by the acts of agent. Right? So let me give you an example here. Our lawyer-client relationship is the best example of principal and agent. Now, when a client signs this wakalatnama or contract with the lawyer, and at that time, the client should be, the principal should be competent to contract, section 183. He should be of major age, he should be of sound mind. And if that fellow, that client, 1 second please. Yes, sorry for the break. So, the client who is signing the wakalatnama, he should be in a good health. He should be having good senses, good mind, good mental understanding that whatever he is signing. If you have ever seen the wakalatnama, there it is written कि फलाना फलाना अधिवक्ता BLLB, अब वो पुराना पैटर्न है, चाहे वो BSc LLB हो बेचारा, चाहे MA LLB हो या वो BMS LLB हो, वो एक अलग बात है, पर उसमें लिखा रहता है और BLLB, बस ये माना जाता है कि बी एडवोकेट का मतलब BLLB होता है। तो वहाँ पे वो पूरी पावर देते हैं, मतलब पेपर साइन करने की उसको लॉयर को, और कोई भी इवन प्रॉपर्टी भी अगर चाहे तो वो सेल कर सकता है। इतनी पावर हम मतलब सारे का सारा अपना जो कैपेसिटी है, एज हम जज के सामने ही मान के चलते हैं कि भी लॉयर ना जाके वो हम ही क्लाइंट ही जा रहा है। तो दैट बिकम्स द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। But here what we need to understand is that the mental capacity of the client should also be assessed. ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जनरली क्या होता है ना, जो जैसे हनुमानगढ़ से या सॉरी मतलब आई एम यूजिंग दिस वर्ड्स, जो बिहार से राजस्थान से ऐसे लोग जो करके आते हैं, दे डू नॉट अंडरस्टैंड द टेक्निकल थिंग्स, और फिर वो उनकी प्रैक्टिस भी ऐसे ही चलती है। तो कोर्ट में हार्डली 5 या 10 वकील होते हैं जिनकी अच्छी वकालत चलती है, बाकी सब चाय पीने जाते हैं। और एक चीज और आपको मैं बता दूं कि जो इंडियन एडवोकेट एक्ट है 1961, प्लीज टेक ए नोट ऑफ इट, इंडियन एडवोकेट एक्ट 1961, अब कोई वकील नहीं है। वकील वर्ड वाज यूज्ड फॉर इंडियन लॉयर्स, जो यहाँ से लॉ करते थे, बैरिस्टर बोलते थे, जो इंग्लैंड से बार एट लॉ बोलते थे उसको बैरिस्टर वर्ड है, जो इंग्लैंड से लॉ करके आते थे उसको बैरिस्टर, बार एट लॉ, जो इंडिया से करते थे वकील, और यूएसए में बोलते हैं हम अटॉर्नी, और जो यूरोप में वर्ड है काउंसिल। हमारे यहाँ इंडियन एडवोकेट एक्ट 1961 बड़ा क्लियरली कहता है
ये सारे वर्ड अब यूज नहीं करने, केवल एडवोकेट करना है। तो वकील शुड नॉट बी यूज्ड, हालांकि वो एक कॉमन लैंग्वेज है, कॉमन पैरालेंस है, बट टेक्निकली स्पीकिंग वी आर ऑल एडवोकेट्स, नो बैरिस्टर्स, नो क्लाइंट, नो अटॉर्नी एंड नो काउंसिल। बट सर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में तो अभी भी जैसे ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये सारी डेजिग्नेशन वो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में है बेटे। अटॉर्नी जनरल इज डिफरेंट थिंग, वो हेड होता है स्टेट का प्रोसिक्यूटिंग विंग का, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। जो हम कॉमन जैसे वकील बोल देते हैं ना, वकील बोल देते हैं, और कई बार जज जैसे जो मान लो ज्यादा अंग्रेजी आती है कुछ जज, इसको काउंसिल बोल देते हैं, लर्नेड काउंसिल। वो हाई कोर्ट में तो वो चल जाता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वो पुराने समय से है। बट टेक्निकली स्पीकिंग, अगर आप इंडियन एडवोकेट एक्ट 1961 देखेंगे, टेक्निकली स्पीकिंग वी आर ऑल एडवोकेट्स नाउ एंड नो अदर वर्ड शुड बी यूज्ड, दैट इज ऑफेंसिव। वकील का मतलब, वकील कहते थे जैसे मैंने बताया, जो हिंदुस्तान से कानून पढ़ के आया, जिसको कुछ नहीं आता, जिसने हिंदी में लॉ करी है, उसको वकील बोलते थे, हिंदी वाला वकील बोलते थे, अगर अब मैं आपको टू बी प्रिसाइज बताऊं। तो बहरहाल जो हमारा पहला पॉइंट है मैंने आपको क्लियर कर दिया, और इसमें हमने एग्जांपल कोट किया, आपको याद रहेगा इससे। लॉयर एंड क्लाइंट। तो हमें क्लाइंट की मेंटल कैपेसिटी असेस करना बड़ा जरूरी है, और लॉयर की भी मेंटल कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, नो डाउट। सेकंड पॉइंट है, एजेंट मे नॉट बी कॉम्पिटेंट। एजेंट की जो कैपेसिटी है, दैट शुड बी looked at, that should be judged from two angles. Number one, that is capacity of the agent to act on behalf of the principal, that is to bind the principal and the third person. जो नॉर्मल एजेंट की बात हो रही है, नॉर्मल एजेंसी का मतलब यही होता है ना कि वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा है, प्रिंसिपल ही काम कर रहा है, थर्ड पार्टी के उसमें वो सबको बाउंड कर देगा, मतलब थर्ड पार्टी भी बाउंड होगी, प्रिंसिपल भी होगी, ठीक है। सेकेंडली जो उसकी कैपेसिटी है, दैट इज टू बाइंड हिमसेल्फ बाय ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हिमसेल्फ एंड प्रिंसिपल। तो जो पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ एन एजेंट टू बाइंड द प्रिंसिपल विद थर्ड पर्सन, एनी पर्सन में बिकम एन एजेंट, चाहे वो 18 से नीचे क्यों ना हो, चाहे वो मैड क्यों ना हो। बट if we are talking the second type of capacity, that is to bind himself and principal, for that we require that the principal as well as the agent should be competent to contract. So here what is important is that two parties should be competent to contract rather than the agent, that the third party and the principal. थर्ड पार्टी कौन होगा सर? देखो बच्चे, थर्ड पार्टी का मतलब हो गया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, वो विक्की पे लड़का घूमता रहता है या मोटरसाइकिल पे लड़का घूमता रहता है, वो जिस दुकानदार को जाके सामान दे रहा है या ले रहा है, अब वो जिस दुकानदार को सामान दे रहा है या ले रहा है वो थर्ड पार्टी हो गया। अब वो जिसकी दुकान पे काम करता है वो प्रिंसिपल हो गया, मोटरसाइकिल वाला लड़का हो गया एजेंट, ठीक है। तो वो जो थर्ड पार्टी है और जो प्रिंसिपल है वो कंपिटेंट होने चाहिए दोनों, और जब वो एजेंट है जिसका काम सिर्फ प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करना है या कोई काम करना है, उस कैपेसिटी में तो वो इनकम्पिटेंट हो सकता है, इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो मैड क्यों ना हो, माइनर क्यों ना हो, इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। लेकिन जब हम बात करते हैं, क्या वो मोटरसाइकिल वाला लड़का और जो दुकानदार जो मालिक है, उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर उनकी बात करें तो वहां पे वो कंपिटेंट होना जरूरी है, अदरवाइज एजेंट से कोई रिकवरी नहीं कर सकता प्रिंसिपल, ठीक है।
प्रिंसिपल अगर चाहता है कि एजेंट को शू करूं, अगर कोई गलती हो तो वो कंपिटेंट होना चाहिए एजेंट। दिस इज द लो पॉइंट। यहाँ पे कोई डाउट है आपको, किसी को? हाँ, यस। दो कैपेसिटी हुई यहाँ पे। मैं आपको फिर से बता दूं, मोटरसाइकिल वाला लड़का जब सामान लेके जा रहा है या लेके आ रहा है, एक तो वो काम है उसका, तो वहां पे वो मे नॉट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारा सेक्शन 184 है, मे नॉट बी, सेकंड पॉइंट है हमारा, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे क्या प्रिंसिपल एजेंट को शू कर सकता है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए एजेंट को कॉम्पिटेंट होना चाहिए, तभी तो शू करेगा, अदरवाइज कैसे शू करेगा। तीसरा पॉइंट, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी, सेक्शन 185। Section 185, no consideration is necessary. So in simple words, from the, you see the nature of this concept, that is agency, it simply requires an agreement. Let me take you to this, here, it is consent and agreement. So both agent and principal, what they do is they consent to be principal and agent, number one, and they agree